मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा गोद ली हुई 300 विधवाओं को प्रत्येक माह की तरह इस माह भी राशन सामग्री प्रदान की गई। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए एक छाता भी प्रदान किया गया। रविवार को अस्पताल परिसर में दिए गए इस राशन सामग्री के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी उपस्थित रहीं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मारवाड़ी अस्पताल जहां 24 घंटे मरीजों के बेहतर इलाज में काफी कम मूल्य में इलाज करती है, वहीं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक इस अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक महीने इन विधवा माताओं को राशन सामग्री वितरण करना, उनके स्वास्थ्य की जांच कर जरूरत पड़ने पर उनके निःशुल्क इलाज करना काफी सराहनीय कार्य है। एवं इस अवसर पर उखड़ा पांडवेश्वर अंचल के उद्योगपति विश्वजीत उर्फ बापी दे ने भी कई बातें कही। रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा ने भी इस अवसर पर अपने वक्तव्य रखे और कार्यक्रम का संचालन मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के मैनेजिंग कमेटी के सचिव राजेंद्र प्रसाद खैतान ने किया। ठाकुर के गुरुदेव के অ্যাডপ্ট করেছিলাম, তাদেরকে ভোট দিয়েছি আমরা। এদিকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের 1 বছর লেগেছে ম্যাডাম। কি করে পাবো, কোথায় পাবো বিধবা মাতা বলাটা বড় সহজ। আমরা রামকৃষ্ণ মিশন এইরকম যারা সংস্থা আমাদের আছে, প্রতিষ্ঠান যারা আছে, তাদের মদত দিয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে বিশেষভাবে এতে মদত করেছিলেন। তবে 1 বছর লেগেছিল। আজকে আমরা 350 विधवा ऑफिसर तो मैं रानीगंज से रहता हूँ, बचपन से मारवाड़ी हॉस्पिटल देखते बड़ा हुआ और फैसल हॉस्पिटल का साथ रिलेशन अलग ही है। आज भैया बोलिए, राजन बोलिए, इन लोग का एक सोच सब कुछ बदल सकता है। सोच ही बड़ा चीज होता है। इतना जन को क्या देंगे কি মাকে আমি আমার প্রণাম জানাই। যারা আজকে আসতে পারেননি, বাড়িতে রয়েছেন, দাদা বলছিলেন 250 জন মতো এখানে আসতে পারেন। বাকি মানুষরা মায়েরা যারা অসুস্থ বা কোনো কারণে আসতে পারেন না, তাদের কাছে সেবা পৌঁছে যায়। আপনাদের থ্রু দিয়েই আমি এই মায়েদেরকেও প্রণাম জানাই, আপনাদেরকেও প্রণাম জানাই। আর এই যে হসপিটাল, মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল, এই পরিবারে যতজন সদস্য রয়েছে আজকে এখানে সবাই উপস্থিত আছেন, যারা মানুষকে সেবা প্রদান করেন, তাদের প্রত্যেককে আলোকচিত্র শিল্পী যারা ভাইরা রয়েছেন তাদেরকে, সমস্ত জ্ঞানীগুলি জনকে এবং মায়েদেরকে সকলকে সম্মিলিতভাবে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই। আপনাদের দেখে, বিশেষ করে দাদাকে দেখে আমি অনেক অনুপ্রেরণা পেলাম। আজকে আমরাও কাজ করি, কিন্তু এত বড় মাপের কাজ তো করতে পারি না। আমি খুব সামান্য মাপের মানুষ, ছোট ছোট কাজ করে থাকি। আমার মেয়র রিলিফ ফান্ড যেটা আছে, সেখান থেকে আমি খুব অল্প সংখ্যক, মানে খুব অল্প টাকা দিয়ে সাহায্য করি। কোনো গরিব বাচ্চা হয়তো করতে পারছে না, কোনো গরিব মায়ের হয়তো চিকিৎসা হচ্ছে না, বা কেউ বিয়ে দিতে পারছে না, সেখানে আমি দিই কিন্তু খুব কম টাকা। সেটা যাই হোক, করার ইচ্ছে একটা আছে। কিন্তু তারা যে এখানে একটা এত বড় একটা লার্জ স্কেল একটা এরকম হাসপাতাল, এবং যেগুলো খুব চিকিৎসার খরচ সাপেক্ষ, ডায়ালিসিস বলুন, ল্যাপ্রোস্কোপি বলুন, এই যেগুলো আমরা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট বলুন, যেগুলো আমাদের পক্ষে সত্যি করে অনেক টাকা খরচ না করে করা সম্ভব হয় না, সেগুলো অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে, কোনোটা আবার বিনামূল্যে এখানে দাদারা দেবেন। এবং তার জন্য এতগুলো মানুষের অবদান রয়েছে। আরো অনেক মানুষ যারা চান না যে আমাদের প্রচার হোক, আমরা সামনে আসি। যেরকম একজন মানুষের কথা দাদা বললেন, যারা পরোক্ষে থাকেন, যারা প্রত্যক্ষে আছেন। और सबसे अपील करता हूँ कि आदमी अगर रचनात्मक और सकारात्मक काम छोटा से छोटा भी करे, घर का बच्चा ही क्यों नहीं हो और हमारे जैसे दिग्गज शैतान भी क्यों ना, आदमी के छोटे काम की सराहना करनी चाहिए। एप्रिसिएशन जिंदगी में बहुत मायने रखता है, वरना तो हताश हो जाते हैं कि अरे किए जा रहे हैं, कहीं कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। हम लोग 1 सप्ताह पहले आसनसोल के और भी कुछ सोशल वर्कर आए थे और पूरे भवन का निरीक्षण हम लोगों ने किया। मैंने उस पर कुछ रिपोर्टिंग भी की थी और लोगों ने काफ़ी
सराहना की। मैं ठाकुर गुवाहाटी में कुछ नहीं कहूँगा, जो भी कहूँगा, जो कुछ देखा है, अनुभव किया है, वही मैं कहूँगा। एक जिनके कदमों के निशानात हैं, আমি প্রথমে বারোয়ারি রিলিফ সরকারি হসপিটালে যারা কর্মকর্তা আছেন এবং যারা ওয়েলউইশার আছেন তাদের সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম করার জন্য। স্বামীজি বলেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে আমি দুটো হাত বা দুটো পা বা দুটো কান থাকিয়ে আমি তাকে মানুষ বলে মনে করি, लेकिन मन में मेरा ऐसा भाव है कि उसको शब्दों द्वारा व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मेरा सौभाग्य हुआ था आज से 6 महीना पहले मैं एक बार इस हॉस्पिटल में परम श्रद्धेय श्री खैतान जी से मिलने आया था। उस वक्त खैतान जी साहब ने मुझे पूरा हॉस्पिटल दिखलाया था, इसकी ऑर्थोपेडिक यूनिट, इसकी डायलिसिस की यूनिट और समस्त सेवा कार्यों की जानकारी मुझे दी गई। मेरे मन में इतना सुधार भाव आया था, मैं उसी वक्त एक बार और जब भी मिलता हूँ खैतान जी का पैर छू करके आशीर्वाद लेता हूँ। लेकिन उनका लूँगा। सबसे पहले तो आप जो ये सेवा मूल्य के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि ये कार्य भविष्य में भी आगे बढ़ता रहे। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज ये मेरा सौभाग्य है कि खैतान जी जो चाचा जी हैं, उनसे उनके सानिध्य में जो पिछले 1 साल से मिलकर समाज के जो कल्याण के कार्यों में उनका जो सहयोग मिला है या मैं जो सहयोग कर पा रहा हूँ वो अभूतपूर्व है। एक बात छोटी सी जरूर कहना चाहूँगा कि जब खैतान जी चाचा जी जब बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए। उन्होंने एक ही चीज कही कि आप अपने गुरु से यही अरदास करिएगा, मुझे कुछ समय और भगवान दे दे। उन्होंने ये जो समय अपने लिए नहीं मांगा है, उन्होंने रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और अड्डा के अध्यक्ष तापस बंदोपाध्याय ने पानवेश्वर बाजार संलग्न रक्षा काली मंदिर के समीप 2 अत्याधुनिक हाई मस्ट टावर लाइट्स के उद्घाटन किए। इस मौके पर मौजूद रहे साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष RP खैतान, तृणमूल कांग्रेस पानवेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष क्यूरिटी मुखर्जी तथा अन्य सदस्यगण। इस अवसर पर अड्डा चेयरमैन व विधायक तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि वैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत इलाके के रक्षा काली मंदिर परिसर वैद्यनाथपुर पंचायत इलाके के व्यवसायिक समुदाय के लिए स्वाभाविक रूप से खुशी की घड़ी है। इस संदर्भ में विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से पानवेश्वर में विकास कार्य हो रहे हैं। পানবেশ্বরের 2 জায়গায় যে হাইমাস্ট টাওয়ার লাইট উদ্বোধন হলো, কি বলবেন আপনি? আলোকোজ্জ্বল পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, আগেই কাজটা হওয়া উচিত ছিল, এতদিন হয়নি, দেরি হয়েছে। তো যাই হোক, আজ আমরা পাণ্ডবেশ্বরের 2টো হাইমাস্ট লাইট আজকে জ্বালিয়ে দিলাম। আরও 5টি লাইট হাইমাস্ট লাইট পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়ে আছে এবং সেই সঙ্গে আই লাভ পাণ্ডবেশ্বর বলে একটা সেলফি পয়েন্ট আমরা পাণ্ডবেশ্বরে করছি, আগাম জানিয়ে দিলাম। সময়ের মধ্যে এই লাইটগুলো তৈরি করে দিয়েছেন। এছাড়াও পাণ্ডবেশ্বরে আমরা যে অটো হাব করেছি, অটো হাবের যে প্রস্তাবিত জায়গা, সেখানেও আমাদের একটি হাইমাস্ট লাইট ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে। আমাদের পাণ্ডবেশ্বর ঢোকার মধ্যে টুমনির পাশে যে টেকোনা জায়গাটা আছে, সেখানেও একটা হাইমাস্ট লাইট আমার মনে হয় ফাউন্ডেশন লে হয়ে গেছে। সুতরাং সারা পাণ্ডবেশ্বর জুড়ে এডিডিএ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন, আমরা তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকের এই ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উল্টো রথের দিন তাপসদার ইস্কন সহ অন্যান্য জায়গায় আজকে প্রোগ্রাম ছিল,
যে প্রস্তাবগুলো যেগুলো আমাদের যাচ্ছে প্রকল্পগুলো সেগুলো ওখানে লাল ফিতার বাঁধনে না থেকে সবুজ ঠান্ডা দেখবে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভালো থাকুন, থ্যাংক ইউ। যে একটি ফাংশন আছে খাইনা গায়ে তো 2009-এর পর 11-এর পর আমরা জানতে পারলাম যে এরিয়া বলে একটা জায়গা আছে, প্রতিষ্ঠান আছে, সেটার মাধ্যমে সরকার যদি ইচ্ছে করে প্রচুর কাজ করতে পারে এবং সেই কাজ করার তাদের স্বাধীনতা আছে। তারপর বিভিন্ন মানুষের কাছে তাদের আপনার দাবি মেনে সে কাজগুলো করা যায় এবং আপনারা যারা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আজকাল তো ইন্টারনেটের যুগ, আজকাল ডাইরেক্ট ইনফরমেশনের যুগ, কেউ কারো তথ্য চেপে রাখতে পারে না। আজকের দিনে যদি 2011 থেকে 2022 পর্যন্ত তথ্য নেই, 11 বছরে যত কাজ হয়েছে এডিডির মাধ্যমে, এডিডির 30 বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটা ছিল আসানসোল প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন, পরবর্তীকালে আসানসোল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, দেখবেন তার 1000 গুণ বেশি কাজ হয়েছে। আমরা 1 বছরে একটা বিধানসভায়। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के सोनपुर बाजार आरएन कॉलोनी में इनमोसा ईसीएल जोन की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में ओपन कास्ट माइनिंग के अभिनव और सुरक्षा पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में ईसीएल के डीटी जयप्रकाश गुप्ता, इनमोसा के महासचिव पीएन मिश्रा, माइन सेफ्टी सीतारामपुर के उप निदेशक ए रामबाबू, ईसीएल के जीएम सेफ्टी एनके साहा, ईसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्य विनोद कुमार सिंह, सोनपुर बाजारी एरिया के महाप्रबंधक आनंद मोहन, सोनपुर बाजारी इनमोसा के अध्यक्ष मनीलाल मुखर्जी, सचिव डीके पांडे, सौमेन चौधरी, सतनाम सिंह तथा कनस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक ए.के. सिन्हा, काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक एस.के. चौधरी तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सेमिनार को सफल बनाने के लिए सोनपुर बाजारी एरिया के कार्मिक प्रबंधन आबिर मुखर्जी, सीडी अधिकारी अभिषेक दूधवाल और प्रियंका सिंह आदि ने संचालन किया। मुख्य अतिथि ईसीएल के ऑनर डायरेक्टर टेक्निकल परम आदरणीय जेपी गुप्ता साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय पीएन मिश्रा साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से उपस्थित राम बाबू साहब, सोनपुर बाजारी क्षेत्र के महाप्रबंधक मोहन साहब, जीएम सेफ्टी आदरणीय साहा साहब, सेफ्टी बोर्ड के सदस्य विनोद कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित टेक्निकल एक्सपर्ट परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर पोदार साहब और काजोड़ा कनस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक महोदय, अन्य अधिकारीगण और ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल से आए हुए इनमोसा के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी श्री ए रामबाबू, ऑल इंडिया इनमोसा परिवार के जनरल सेक्रेटरी श्री पीएन मिश्रा जी, सबसे पहले मैं पीएन मिश्रा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इनमोसा के फंड से आज का सेमिनार ऑन इनोवेटिव एंड सेफ ओपन कास्ट माइनिंग के मुख्य अतिथि एवं ईसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, डायरेक्टर ऑपरेशन, एक डिस्टिंग्विश्ड पार एक्सेलेंस माइनिंग इंजीनियर, कुशल प्रशासक एवं ईसीएल के मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री जेपी गुप्ता साहब का इस सेमिनार में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनकी उपस्थिति से
हम सोनपुर बाजारी के समस्त कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित एवं प्रफुल्लित हैं। सर, आपकी उपस्थिति हम सबों को नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ अपने वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य 12 मिलियन को अचीव करने में प्रेरणादायक होगा। देखिए, एक ज़माना था कि सब लोगों के दिमाग में ये बात बैठता था कि ओपन कास्ट बड़ा सेफ माइनिंग होता है, लेकिन पिछले कुछ चंद वर्षों में देखने के लिए हम लोगों को मिला कि सेफ माइनिंग है। ओपन कास्ट इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना सेफ है उतना डेंजरस भी है। बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को सुनने में मिला होगा। ECL में भी बहुत घटनाएं घटी, दूसरे कंपनीज में भी जब घटनाएं घटी तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, डिजास्टर को रोक लिया। आज तो डिजास्टर का बहुत सारा कारण है, इस पर हम लोग मंथन करने के लिए आज इकट्ठा हुए। आज के समय में देखा जा रहा है कि हम लोग लगभग 70% कोयला निकालते हैं ओपन कास्ट से, तो ओपन कास्ट के बारे में भी चर्चा करना। उपस्थित हमारे साथीगण, इनमोसा के अधिकारीगण और अन्य कर्मचारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग कोयला निकालने के लिए हर जगह पर हर संभव कोशिश करते हैं और हमारे देश का 80% कोयला जो है कोल इंडिया निकालती है। उस कोयला को पूरा करने के लिए हम लोग का भी अंडरग्राउंड के साथ साथ ओपन कास्ट भी पैदा कर रहे हैं। वही हमारा मेन सोर्स है जो शैलो डेप्थ में है, उसे निकालते हैं। जैसा अभी मिश्रा सर ने बताया कि हम लोग ओपन कास्ट को सुरक्षित मानते थे, बात भी सही है, लेकिन कुछ विगत दिनों में जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है, जैसे डेप्थ की हम लोग करते जा रहे हैं, तो उसमें कई तरह के माइनिंग समस्याएं जो है पैदा हो रही है, जिससे कि एक सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा पहलू आ जाता है। हम डेप्थ के साथ बढ़ते हैं तो हमारे लिए ग्रेडियंट का सवाल उठता है कि किस ग्रेडियंट में हम काम करेंगे, किस तरह का मशीन उपयोग करेंगे और कैसे आदमी उस मशीन को उपयोग करेंगे जिससे कि हमारे जो सुरक्षा में जो है कोई कमी ना हो। और इस हमारे डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट प्लानिंग और ऑपरेशन है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से हमारा ये कंपनी अग्रसर है और इस कोल इंडिया को में योगदान दिला रहे हैं। साथ ही मंच पर आसीन गेस्ट ऑफ ऑनर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी ए राम बाबू साहब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में PM मिश्रा साहब, जनरल सेक्रेटरी इनमोसा, श्री विजय कुमार सिंह जी, वर्किंग प्रेसिडेंट इनमोसा, श्री विनोद सिंह जी, सेफ्टी बोर्ड मेंबर और इस एरिया के महाप्रबंधक। सेफ्टी कैसे रहेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ओपन कास्ट बड़ा सेफ माइनिंग होता है, क्योंकि बहुत दुर्घटनाएं घट गई, बहुत डिजास्टर हो गया। इसीलिए हुआ कि नहीं, इसके ऊपर ओपन कास्ट को अगर फोकस दिया जाए, ओपन कास्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम मैन पावर है, तो सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। उसी कड़ी में आज का एक कार्यक्रम आयोजित। सेफ्टी आपका परिचय? मेरा परिचय है कि मैं PM मिश्रा हूँ, इनमोसा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद। अंडा से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुड़िया ब्लॉक 2 स्थित ECL के सोनपुर बाजारी एरिया के रविंद्र नगर कॉलोनी स्थित रविंद्र नजरुल भवन में रविवार को इनमोसा की ओर से इनोवेशन एंड सेफ ओपन कास्ट माइनिंग नामक के एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सोनपुर बाजारी एरिया तथा इनमोसा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार के दौरान बतौर मुख्य अतिथि ECL के डायरेक्टर टेक्निकल JP गुप्ता मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस दौरान सेमिनार को संबोधित करते हुए ECL के डिप्टी JP गुप्ता ने कहा कि माइनिंग कोल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है।
यही वजह है कि माइनिंग के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने कहा कि दक्ष माइनिंग लोगों के बदौलत ही सुरक्षा के साथ कोयला का उत्पादन हो पाता है। वर्तमान समय मैकेनिज्म चल रहा है जिसका कोई विकल्प नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की मांग को देखते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम का प्रयोग करना पड़ रहा है। सेमिनार के दौरान माइन सेफ्टी के डेप्यूटी डायरेक्टर ए रामबाबू, सेफ्टी बोर्ड के सदस्य विनोद कुमार सिंह, ईसीएल सुरक्षा महाप्रबंधक NK साहब, सोनपुर बाजारी एरिया के कार्मिक प्रबंधक प्रभारी अबीर मुखर्जी, इनमोसा के सोनपुर बाजारी एरिया सचिव देवेंद्र कुमार पांडे, अध्यक्ष मनीलाल मुखर्जी, सोमेन चौधरी, सतराम सिंह, सुबीर मंडल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। एक मोमेंटो भी साथ में दिया जा रहा है आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Sol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। एक दिन पहले बर्नपुर के हीरापुर इलाके के कुछ आदिवासी समाज के लोगों ने अपने लोगों को 4 दिनों से बंधक बनाए जाने का आरोप लगाकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का मामला सामने आया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि हीरापुर के कुछ आदिवासी समाज के लोगों को जामुड़िया के सरिस डांगा में जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। इस घटना के बाद अब बंधक बनाने के आरोपी सरिस डांगा आदिवासी समाज के मोड़ल बानेश्वर हेमरम ने इन सभी आरोपों को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हमारे गांव के एक लड़के का विवाह उस गांव की आदिवासी पाड़ा में ठीक हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं बनी और शादी होने से पहले ही शादी रद्द हो गई। लेकिन इसके एवज में लड़कों वालों ने 9 लाख रुपए वसूले, तभी ही उन्हें छोड़ा गया था। आज उसी तरह की घटना उनके समाज के लड़की ने की है और उसने पति के रहते एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। ऐसे में हमारे समाज के कुछ नियम हैं और हम चाहते हैं कि इसी के तहत पूरे मामले को निपटारा हो। জামুড়িয়া 32 পাড়ার যত আদিবাসীদের মরল আছে সবাইকে আমরা ডেকেছি। ডাকার একটা কারণ হচ্ছে গুরগু পাড়ার একটা মেয়ে আমার পাড়ুডাঙ্গার একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল 5 বছর আগে, ওদের একটা বাচ্চাও আছে। হীরাপুর থানার গুরগু পাড়া। তো ওই মেয়েটা 2 তারিখে আমাদের ছেলে থাকতেও স্বামী থাকতেও অন্য কাস্টের একটা ছেলের সঙ্গে সে পরকীয়া করে পালিয়ে যায়। তারপর আমরা যখন খোঁজাখুঁজি করে পাচ্ছি না, থানাতেও একটা মিসিং ডায়েরি করেছি। যখন আমরা পেয়ে যাই ছেলেটার বাড়ি থেকে আমরা ওকে নিয়ে আসি, ওদের পরিবারজনকে আমরা ডাকি, ওদের মরল উপস্থিত হয়েছেন, মরলকেও ডাকি। আমাদের যে আদিবাসী সমাজের সামাজিক বিচার ব্যবস্থা আছে সেই বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা বিচার করি এবং ওকে সাব্যস্ত করি, দোষী সাব্যস্ত হয়। এবং ওদের মরল দোষটা স্বীকার করে। আজ থেকে বিগত কয়েক মাস আগে, মোটামুটি 4 থেকে 5 মাস আগে, আমাদের গ্রামের একটা ছেলে ওদের গ্রামে একটা মেয়েকে দেখেছিল, দেখাশোনা করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কিছু একটা কারণে ছেলেটা পরে বলে না আমার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু দেখাশোনা হয়েছিল, দুপক্ষে রাজি ছিল, পরে বিয়েটা হয়নি। যে বিয়েটা কেন হয়নি, ওরা বলছে আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে না, বিয়ে যদি না করা হয় তাহলে 9 লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আমাদের ওই গ্রামে আমরা যখন যাই ওরা রাত 2টো পর্যন্ত আটকে রাখে, আমরা টাকাটা পুরো পে করি, তারপরে আমাদেরকে ছাড়ে। আজকে আমাদের আদিবাসী সমাজে টাকা পয়সার কোনো লেনদেন নেই, আমাদের বিচার ব্যবস্থা অন্য রকমের বিচার ব্যবস্থা, শাস্তিটা অন্যভাবে দিই। কিন্তু আজকে আমাদের কাছ থেকে ওরা 80,000 টাকা এবং 85,000 টাকা নগদ নেই, তবে আমাদের ছাড়ে। আজকে ওদের মেয়ে দোষ করেছে, ওদের কাছে আমরা জানতে চাইছি যে তোমাদের বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী আজকে কি তোমরা টাকা দিয়ে এখান থেকে বেরোবে, না আমাদের আদিবাসী সমাজে যে বিচার ব্যবস্থা আছে সেই অনুযায়ী তোমরা বিচার করে তোমরা বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, তোমাদের বাড়ি চলে যাবে। আজকে 5 দিন রেখেছি, একটা গরু ছাগল হারিয়ে গেলে গার্জিয়ান খোঁজাখুঁজি করে, আজকে 5 দিন রেখেছি, ওদের বাড়ির লোক, ওদের গ্রামের লোক, ওদের মরল কেউ আসছে না। তাদের আওতায় আছে বিচার করার জন্য, বিচার এখনও আমাদের চলছে। ওরা কি করছে, ওই পক্ষ ওরা হীরাপুর থানা ঘেরাও করছে,
আদিবাসী সমাজের বিচার ব্যবস্থা ওরা মানছে না। সিপি সাহেবের কাছে যাচ্ছে, সিপি সাহেব ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিধানদার কাছে গিয়েছিল, মেয়রের কাছে, মেয়রও ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলছে সমাজের ব্যবস্থা সামাজিকভাবে তোমরা এটা মিউচুয়াল করে দাও, কিন্তু ইনারা মানছে নাই, সমাজের সামাজিক বিচার ব্যবস্থা মানছে নাই। আজকে সেই জন্য আমাদের যে টাকাটা তখন নিয়েছিল, আমরা বলেছিলাম ভাই তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, পরবর্তীকালে আবার তোমাদের মেয়ে, তোমাদের ছেলে আমাদের মেয়ের সঙ্গে কিংবা ছেলের সঙ্গে আবার বিয়ে হবে। সেই জন্য দুপক্ষ এক জায়গায় বসে যাতে সামাজিকভাবে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बर्दवान और दुर्गापुर में इंटरनेट सेवा की गति देने के लिए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री द्वारा इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। वर्चुअल का उद्घाटन मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शहर के केंद्र दुर्गापुर के एक निजी होटल में बर्दवान दुर्गापुर के सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्षण घुड़ई, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शहर के केंद्र दुर्गापुर के एक निजी होटल में बर्दवान दुर्गापुर के सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घुड़ई सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उम्मीद है कि यह सेवा इंटरनेट सेवाओं की गति को दुगना करेगी। অর্থাৎ এই যে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4 যেটা আছে তার একটা ক্যাপাসিটি আছে। আগে ছিল 2, তারপর 4 হলো, এখন 6-এর দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে। কেন কি এটা ভরে গেছে, কয়েক বিলিয়ন হয়ে গেছে সংখ্যা, আর নতুন টেকনোলজি আসছে, 5G আসছে, 6G আসবে। তো এইগুলোর জন্যে আমাকে ভার্সন মাইগ্রেট করতে হবে। আপনারা মনে থাকবে হয়তো Y2K প্রবলেম যখন হয়েছিল, অর্থাৎ আমেরিকায় যখন 1999 হয়ে যাওয়ার পর 2000 সাল হবে, তো ওরা যখনই কম্পিউটারে ডেট করছিল তো 00 চলে আসছিল। আমাদের ভারতের আইটি প্রফেশনালরা যে সমস্ত প্রোগ্রামিং করে ওটাকে ঠিক করেছিল, Y2K প্রবলেমকে শেষ করলো। তাই আমরা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলাম আইটি। আজকে যেমন মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি যখন আজ থেকে 7 বছর আগে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, তখন ভেবেছিলাম যে এত দ্রুত গতিতে কি করে হবে, কিন্তু এই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে বিশ্বে সব জায়গায় আমাদের নাম হচ্ছে যে আইটির মধ্যে এটা আছে। এই যে আমরা যখন ইন্টারনেট প্রোটোকল 4 থেকে 6-এ মাইগ্রেট করব, তখনও কিন্তু আমাদের টেকনোক্র্যাটদের অনেক দরকার আছে, বা তার স্কিল থাকা উচিত লোকের, যেটা আমাদের পাঠ্যক্রমে পড়ানো হয় না, সেটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে শিখতে হবে। আর এই মিক্সি दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बेलियातोड़ जेमिनी रॉय कॉलेज के एनसीसी एवं एनएसएस यूनिट की तरफ से बेलबोनी रेलवे स्टेशन प्रांगण इलाके को पैराथीनियम मुक्त करने के उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में दोनों यूनिट की तरफ से 30 की संख्या में वॉलेंटियरों ने हिस्सा लिया, जहां एनसीसी कैडेट सुदीप मान, तारकनाथ मंडल, कोयल मिश्र एवं एनएसएस की तरफ से नेहा शीट, राहुल चैटर्जी एवं स्थानीय लोगों में अमलेंदु बैनर्जी एवं चिन्मय नंदी उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
बांकुड़ा लायंस क्लब की तरफ से जय हिंद लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। रविवार की सुबह को बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन अलकसीन मजूमदार की उपस्थिति में क्लब की तरफ से 30 लोगों को ड्राई फूड प्रदान किया गया। बांकुड़ा नगर पालिका की तरफ से सरकारी रूप में गृहहीन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, जहां समय समय पर गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से आवासीय लोगों के प्रति ध्यान दिया जाता है। আমাদের লায়ন ফ্রেন্ড আর অন্যান্য সকলকে জানাই আমাদের লায়ন্স ক্লাবের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। অনেকজনই আপনাদের পাশে আছেন, তাদের সাথে আমরাও আছি লায়ন্স ক্লাবের পাশে। আমরা মাঝে একদিন এসেছিলাম, সন্ধ্যেবেলায় এসেছিলাম, তখন আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন। তো আমরা ম্যানেজারের সাথে দেখা করি, আমরা জানতে চাই যে আপনারা কী কী অসুবিধে ভোগ করছেন। ওনারা জানান যে আপনারা দুবেলা খাবার পান মা ক্যান্টিনে, আর আপনাদের টিফিনের অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য আমরা মুড়ি, বিস্কিট, চা, পাউডার মিল্ক এগুলো সব আপনাদের জন্য এনেছি। এছাড়াও যদি আপনাদের অন্য কোনো দরকার থাকে, আমরা যদি আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলে আমরা আমাদেরকে ধন্য মনে করব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। बांकुड़ा से प्रणव कुमार का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया स्थित ड्रोलिया भवन में आयोजित हुआ। शिविर में उपस्थित विशिष्ट लोगों ने बांकुड़ा जिला जज माननीय शांतनु झा, बांकुड़ा सदर थाना के IC देवाशीष पांडा, 7 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप अग्रवाल, 2 नंबर वार्ड के पार्षद राजीव दे, 6 नंबर वार्ड की पार्षद रेखा दास रजक, विशिष्ट समाज सेवी राजकुमार सुरेका, वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी के सचिव विप्रोदास मिथ्या समित समिति के अध्यक्ष सज्जन सलाम, पुरुलिया सचिव विजय बगाड़िया समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ভদ্রমহিলা যখন বাচ্চা প্রসব করে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার হয়, তারপরে তার প্রচন্ড ব্লিডিং শুরু হয়ে যায় এবং এত বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল এবং ব্লাড ব্যাংকে যখন তার কাগজ গেছে, রক্তের গ্রুপ না জানা থাকার জন্য ওই রক্তের গ্রুপ করতে যেটুকু সময়, তাদের কাছে যদি গ্রুপটা জানা না থাকে, হঠাৎ কোনো একটা RTA হয়ে গেল, RTA মিনস হচ্ছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়, রক্তের প্রয়োজন যদি হয়, আপনার আসানসোলে দরকার, আপনি গ্রুপ চাবেন না, কিন্তু আপনার প্রচন্ড ব্লিডিং হচ্ছে, সেই সময়ে যদি আপনার গ্রুপটা জানা থাকে। শাম উৎসব সেবা সমিতি থেকে রক্তদান শিবির হচ্ছে। এই রক্তদান শিবিরে আমাদের 100-র উপর ডোনারের ব্যবস্থা করা আছে এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে শাম মন্দির সেবা সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আমরা প্রয়োজনে যেন থ্যালাসেমিয়া রোগী বা অন্যান্য যারা রোগী আছে তাদের কাজে লাগতে পারি, এটাই আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য। এখনো পর্যন্ত কতজন রক্ত দিয়েছে? এখন পর্যন্ত আমাদের 65 জন ক্রস করেছে। কি নাম? আমার নাম রাজকুমার সুরেখা। আপনি সংস্থা? আমি এই সংস্থার আজকের এই ব্লাড ডোনেশন কমিটির কর্ণধার। बांकुड़ा से प्रणव कुमार का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।